शेर भी ज्यादा सुनाऊंगा, ठीक है? ओके, Sure, sir. सबसे इम्पोर्टेंट चीज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, when you asked me to cover the Mental Health Act Pakistan, well, of course, after 18th Amendment, mental health is now a provincial situation. So most of the provinces have made their own mental health law. It's not a federal law, but still Pakistan mein, unfortunately, things are not going as the way they should be going, and lot of work have to be done about this. One of the main thing and the most important thing that I want to communicate to you is, so people don't know about that, is there is a difference between forensic psychiatry and mental health legislation that is taught to most of the trainees. Recently, I saw a poster which was indicating that there is a course for forensic psychiatry. Now, forensic psychiatry deals with the people who have mental disorders and they are unfortunately associated with law problems. So, if somebody commits a crime and he is suffering from a mental disorder, those people are seen by forensic psychiatrist. So whenever we say forensic psychiatry, this means criminal law and mental health. So people who have criminally involved in some kind of an act and they have mental health issues, they are dealt by forensic psychiatrists across the globe. And most of the things which are actually taught in Mental Health Act, they are actually the civil suits, the civil things which comes in a domain where you have to understand the patient's rights, the patient's benefits, the mental health authority, the mental health committee, mental hospitals, the admission procedure, the discharge procedure, the challenge procedure in the court. These are civil suits. So law हमेशा दो किस्म से चलता है, एक क्रिमिनल और एक सिविल. हमारे पाकिस्तान में क्रिमिनल और सिविल को मिक्स कर दिया जाता है. So whenever you say that he is a person who should be not fit to stand trial, this is forensic psychiatry. And if a person is involuntarily admitted in a hospital without his consent, like psychotic patient, this is a civil law. So there is a difference between civil law and forensic psychiatry. Most of the people, they feel that it's the same. It's not the same. So Mental Health Act and all civil related things with the people who are having mental health problems, it is dealt by every psychiatrist who's dealing with the day-to-day care of the patients. The forensic psychiatrist deal with the people who are involved in some kind of a criminal activity and law-related issues, and they have mental health issues as well. So if a psychotic patient maybe injures someone, murders someone, or do some kind of act, and then he is, because he is not mentally healthy, those people are seen by forensic psychiatrists associated with law and other areas. But if somebody is having intellectual disability and his opinion has to be formulated as far as his care is concerned, his wealth is concerned, his property is concerned, inheritance is concerned, then this we all psychiatrists should be able to deal with it. So अगर कोई psychiatrist ये कहता है कि जी मैं लेजिस्लेशन में डील नहीं करता या मैं ऐसे केसेस डील नहीं करता कि मैं मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनाता, then it's not actually appropriate.
people should be able to do that appropriately. It is part and parcel of general adult psychiatry. And if a psychiatrist is called by the court to give the opinion of a person who has committed a crime, then of course that patient can be referred to appropriate mental health or forensic psychiatrist who would be able to give the opinion. ये बात clear हुई? Anybody Yes, has sir. any confusion? आप लोगों के तमाम वार्ड्स में फोरेंसिक साइकाइट्री की जब बात होती है तो उसमें आपके वार्ड में जो पेशेंट्स एडमिटेड हैं, जिनको जबरदस्ती रखा गया है या डिस्चार्ज का इशू है या मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है, वो फोरेंसिक साइकाइट्री के जुमरे में नहीं आती. अंडरस्टूड? एनीबडी हैज एनी Yes. डिसएग्रीमेंट अबाउट इट? कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है? ओके. अगर इस पे क्वेरी हो तो मुझसे पूछ लें. अब अगर हम सपोजली फोरेंसिक साइकाइट्री को कवर करना चाहते हैं तो वो आई डोंट वांट टू, because there will be a course in forensic psychiatry, the assessment, plead to not guilty, etc., etc. Those things will be covered by the forensic psychiatrist. And I have made a presentation on that as well. But here I will cover the Mental Health Act and the civil law related to the patients. So वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, ना मैं कह सका ना मैं लिख सका, कि जुबान मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ. Unfortunately, as far as the patient's rights are concerned, there is nothing black and white in Pakistan. So this act deals with the patient's rights ethically. Anybody can come and walk into my clinic and tell me that their brother is having an aggressive episode, and I will be able to give them a medication to calm him down against the patient's wishes. This is actually bombarding into somebody else's personal domain. Like अगर डॉक्टर माहरूख के रिश्तेदार मेरे पास आके कहते हैं जी कि डॉक्टर मारूख को देख लें, और मैं जाके उनको देखता हूं, ये उनकी प्राइवेसी को, मैं बाउंड्रीज को कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं. दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट. एंड मेंटल हेल्थ एक्ट is related to the patient's or person's right related to mental health. It has got nothing to do with legality in general when a person commits a crime. So you have to be very clear about it. Now, when we talk about patients' rights, there are certain definitions in all mental health act or laws, which are civil related, like definition about the psychiatrist. So who is a psychiatrist? So a psychiatrist is a person who is qualified enough, like MCPS, FCPS, or DPM, approved by Pakistan Medical Council or Pakistan Medical and Dental Council. That is a person is called a psychiatrist. Authority. So what is the authority? Whenever the word authority is used in terms of psychiatrist, we always think about Punjab Mental Health Authority or Sindh Mental Health Authority or Pakistan Mental Health Authority or Balochistan Mental Health Authority after the 18 amendments, because these powers were given to the provinces. So there has to be some kind of authority or a governing body who would be able to check these kinds of issues, that there is no unfortunate overriding the rights of a person. So I should not give some medication to a patient without their consent. पानी में मिला के रिस्पेरिडॉन दे दें, उलानजापिन को घोल के पिला दें, राइट? सो ये चीजें मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के जुमरे में आती हैं. और भी चीजें आती हैं, we'll talk about it. So
again, you have to remember two things. There is a general law available and there is a mental health law available. They both have to be, again, clearly understood if we really want to take care of the patients. हमारे यहाँ we do examination point of view mental health law को cover करते हैं, लेकिन हम general law को उसमें mix up नहीं करते. आपको best concepts clear होंगे उस वक्त जब आप थोड़ा सा जनरल लॉ के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन हो, रिलेटेड टू आवर पेशेंट्स. ऑफ कोर्स जनरल लॉ आपको लॉ नहीं करना, बट जनरली cost of maintenance. Whenever a patient fell sick, there are multiple costs associated with it, like उसकी नौकरी, उसका खाना पीना, उसके अस्पताल के खर्चे, उसकी दवाइयों के खर्चे, उसकी फैमिली के खर्चे, वो सारे कौन करेगा? That is, mental health law says that is the cost of the maintenance, and wherever there are social grounds available, the cost should be covered by the government. And if there is a private institution, then the cost should be covered by the relative. This is called the cost of maintenance. It includes छुट्टी, कि अगर वो दफ्तर में मुलाजमत करता है तो उसको दफ्तर से अर्नड लीव के तौर पे एक छुट्टी दी जाए ताकि उसकी फैमिली और उसका अपना गुजारा उस वक्त तक चल सके जब तक वो नॉर्मलाइजेशन फेज में नहीं आ जाता. अनफॉर्चुनेटली अगेन ऐसा नहीं होता और हम उस पे sorry. Somebody wants to ask a question or it's okay? Okay, I will continue. So the cost of maintenance, usually if I will be admitting someone in a services hospital or King Edward Medical Hospital, Mayo Hospital, then I should be responsible as a treating psychiatrist to ensure that whatever resources are available, they should be compensated. So that if the patient comes to me and tells me that I am here admitted in this ward, I need a certificate to submit it into my office to make sure that they understand that I am admitted और मेरी छुट्टी और मेरी तनख्वाह और मेरे पैसे मुझे मिलते रहें, then actually it's my responsibility to do that. मैं उसमें ना नहीं कर सकता कि नहीं मैं तो आपको सर्टिफिकेट बना के नहीं दूंगा क्योंकि मैं इस काबिल नहीं. No, as a psychiatrist, you are supposed to do that. You have to be connected with the office, family, and all the other associated areas. So the cost of maintenance, partly, not as a whole, is my responsibility. Partly, wherever possible, is my responsibility too as a treating psychiatrist. And mental health law covers it. Court of protection. Now, there are specific lower courts which are actually made for protecting people around, like बच्चों की जो बच्चे आवारा हो जाते हैं, घर से भाग जाते हैं या उनकी ट्रैफिकिंग होती है, कुछ भी ऐसा इश्यू होता है या भीख मांगते हैं या सड़कों पे आते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक खास जुरिस्डिक्शन और ऑर्डिनेंस बना हुआ है जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर कोई बच्चा जो कि एक बालिग उम्र में नहीं है और वो सड़क पे पाया जाता है अकेला तन्हा, तो उसको कोर्ट ऑफ प्रोटेक्शन लेकर अपनी कस्टडी में रख के सेफ्टी उसकी डिवाइस करते हुए उसके वालिदैन को या अप्रोप्रिएट जगह पे उसको पहुंचाएगा. This is not what I'm saying. This is actually present in law, and you have to understand these. Any court, this is again a definition, court where there is a government appointed person who is able to make decisions related to all kinds of day-to-day and civil suits. उसमें magistrate भी है, उसमें सेशन जज भी हैं, उसमें हाई कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सो वो सारे. सो एक ऐसा पैनल और एक ऐसी बॉडी जो किसी भी सिविल सूट में फैसला करने की सलाहियत रखती है, उसको कोर्ट कहा जाता है. Government means government of Punjab, of course, and health facility is any facility where a patient is given an appropriate medical services
including psychological, social and other services associated with it. उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी आती है, रिहैबिलिटेशन भी आती है, फिजिकल थेरेपी भी आती है, डॉक्टर्स भी आते हैं, नर्सेस भी आती हैं. सो ऐसी फैसिलिटी जहां पे ये चीजें मौजूद हों उसको हेल्थ फैसिलिटी का नाम दिया जाता है. वो बेसिक हेल्थ यूनिट भी हो सकता है, वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भी हो सकता है, वो रूरल हेल्थ सेंटर भी हो सकता है, वो जीपी का क्लिनिक भी हो सकता है. So any facility where there is a doctor and he is providing services to the people, that is called health facility according to mental health law. और ये mental health law की definitions तमाम जगहों पे सेम ही है, वो चाहे सिंध का हो, चाहे बलूचिस्तान का हो, चाहे पंजाब का हो. Obviously when you are going in the exam, they cannot ask you specifically about Sindh Mental Health Act. They will ask you the questions related to civil suits and law, and they can ask you the definitions because they are the same across, and you have to be able to again respond to their questions if they talk about that. Hospital management, anybody who is involved in the administration of running a health facility, this is hospital management. वो MS है, DMS है या कोई भी है, and they are responsible for providing appropriate medical services to the person who is actually sick. It is legally their bonding. Informed consent. You all know about informed consent, so I won't talk in detail about it. But whenever a patient comes to me, right, if he is brought by somebody else, if he is forced to see a doctor, then we should take an informed consent, ideally written informed consent. और उसके जो पैरामीटर्स हैं वो आपको कवर करने. सो मैं किसी भी पेशेंट को जिसको मेंटल डिसऑर्डर डायग्नोज हो रहा है उसको मैं ट्रीटमेंट अनइन्फॉर्म्ड नहीं दे सकता. लीगली ये चैलेंज है. Magistrate means a judicial magistrate of the first class, specially empowered by the government to perform functions and exercise powers of magistrate under this ordinance. So, magistrate वही जो आपके होते हैं और उनकी परमिशन के बगैर पेशेंट की विलिंगनेस अगर ना हो तो किसी भी मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में किसी भी शख्स का दाखला कानूनी तौर पर नाजायज होगा. Medical officer, anybody who is qualified, having a medical graduate degree, registered with Pakistan and Medical Dental Council, is a medical officer. He's not a specialist, but he is a medical officer. Medical practitioners की definition है, mental disorder की definition है Mental Health Act में, mental impairment की definition है. एक जो फिक्रा मेंटल हेल्थ एक्ट में अब इस्तेमाल होता है वो सीवियर पर्सनालिटी डिसऑर्डर का इस्तेमाल होता है. ये बात डिस्कशंस में मल्टीपल टाइम्स पास्ट में मेरे होते हुए भी आई. बहुत सारे पेशेंट्स हैं जैसे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, सेल्फ अब्यूज की हिस्ट्री है, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स होते हैं दैट कैन लीड टू सुसाइडल थॉट्स एज वेल. सो even the personality disorders should be accommodated in mental health act, and they are if they are severe enough. Now the severity, actually the boundary of the severity is decided by the psychiatrist who's dealing with the person. And severe mental impairment where intellectual disability, autism, Down syndrome, and all of those kind of disorders comes in as well legally. So उसका लफ्ज ये इस्तेमाल होता है. इसी तरह अगर कोई मेंटली डिसऑर्डर्ड प्रिजनर है तो उससे क्या मुराद है? एक ऐसा शख्स जो किसी भी तहत पाकिस्तान के कानून क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व हुआ हो लेकिन वो मेंटल डिसऑर्डर्स का शिकार था, उसको मेंटली डिसऑर्डर्ड प्रिजनर का नाम दिया जा रहा है. माइनर अंडर द एज ऑफ 18 अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान, फीमेल्स के लिए 16 साल की उम्र है और मेल्स के लिए 18 साल की उम्र है कानूनी तौर पे. पेशेंट जो इलाज
तलब कर रहा है। प्लेस ऑफ सेफ्टी, एनी प्लेस लाइक होम, हॉस्पिटल, clinic, or any other place where the patient is protected by a team of people, including a psychiatrist, nurses, paramedical staff, and security personnel, is the place of safety. It could be jail as well. Prescribed medications, whatever a psychiatrist prescribes. अब ये भी एक बहुत बड़ा डायलमा है कि बहुत सारे साइकाइट्रिस्ट के नुस्खे के ऊपर लिखा होता है नॉट वैलिड फॉर कोर्ट ऑफ लॉ। एक्चुअली ये लीगली अनएक्सेप्टेबल है। अगर वो साइकाइट्रिस्ट क्वालिफाइड है और वो इस काबिल है कि वो दवाई लिख सकता है और वो अपने नुस्खे पे दवाई लिख रहा है, तो वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। चाहे आप उसके ऊपर लिख दें नॉट वैलिड फॉर कोर्ट ऑफ लॉ, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हाँ, अगर आप कोई स्टेटमेंट लिख के देते हैं नुस्खे के ऊपर कि दिस पर्सन नीड्स 4 weeks लीव फ्रॉम द ऑफिस because he is suffering from major depressive disorder and this medication will take about 3 to 4 weeks to have its effect until the time he will be reviewed and then further leave decision will be made, then you can write that this certificate is not valid for court of law। ठीक है, ताकि अगर उसने कहीं इस दौरान किसी क्राइम में वो इन्वॉल्व हो गया तो वो पुराना नुस्खा या वो पर्ची इस्तेमाल ना हो सके कोर्ट में। लेकिन उसके अलावा आपका नुस्खा, किसी भी दवाई की मौजूदगी उस नुस्खे पे, वो लीगली सिविल कोर्ट में, सिविल लॉ में एक्सेप्टेबल है एज अ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। सो आप उसके ऊपर अगर लिख भी दें नॉट वैलिड फॉर कोर्ट ऑफ लॉ, इट्स एब्सोल्युटली यूजलेस। पढ़ना होगा तो तुहानू पढ़ लेंगे। ये और बात है कि कभी कोई पकड़ा नहीं गया, अल्लाह खैर खैरियत रखे। साइकाइट्रिस्ट मैंने बात की। रिलेटिव्स की एक मेंटल हेल्थ लॉ में और सिविल लॉ में एक तरतीब है। सो जब किसी से आपने कंसेंट लेनी होती है किसी रिलेटिव से, तो वो कंसेंट एक हायरार्की में ली जाती है। सबसे पहले जो कंसेंट की टॉप प्रायोरिटी है वो पेरेंट्स हैं, वालिदैन, माँ या बाप। उसके बाद बहन या भाई, उसके बाद बीवी, उसके बाद बच्चे। और अगर सपोजली कोई शख्स आगे कहता है जी मैं इसका कजन हूं, तो वो लीगली अगर माँ बाप एग्जिस्ट करते हैं किसी भी जगह पे, और अनलेस और अनटिल लीगली वो ये लिख के दे दें कि जी हम इसकी किसी भी कॉल फेल के जिम्मेदार नहीं हैं, तो कोई कजन आके कंसेंट नहीं दे सकता इन लॉ। अदरवाइज ऑब्वियसली हमारे पास खावंद अपनी बीवी को लेके आता है, उसके वालिदैन हयात हैं, उसके वालिदैन उसके साथ हैं या पीछे हैं या बैकग्राउंड में हैं, तो हस्बैंड की हम कंसेंट नहीं ले सकते। अगर वाइफ कंसेंट नहीं दे रही और वो पेशेंट है और हस्बैंड चाहता है कि उसका इलाज हो, तो पॉसिबिलिटी है अनलेस और अनटिल ही विल बी एबल टू प्रूव इट कि और कंसेंट देने वाला सिबलिंग, पेरेंट्स या कोई और अवेलेबल नहीं है। सो इट्स पॉसिबल, बट अदरवाइज लॉ में वालिदैन, बहन भाई, बच्चे और फिर हस्बैंड, इस तरतीब से चलते हैं। कुछ सिचुएशंस में हस्बैंड्स और वाइफ कंसेंट दे सकते हैं, हर सिचुएशन में नहीं दे सकते। उसके बारे में डिटेल्स मुझे क्लियर नहीं है, सो आई विल अगेन नॉट फोर्स ऑन टू इट, बट सिविल लॉ में अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो उसकी डिटेल्स अवेलेबल हैं, यू कैन जस्ट टेक इनटू अकाउंट, आप सर्च करके उसको पढ़ लें। स्पेशलाइज्ड साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट्स, ये बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट जो हम पेशेंट को बगैर बताए देते हैं, या जैसे डेपो इंजेक्शंस, ईसीटी, आजकल बहुत ट्रेंड है टीएमएस का, आरटीएमएस का, वो सारी ट्रीटमेंट्स को स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स के जुमरे में लिया जाता है।
और जाहिर है उसकी एक्सट्रीम स्टेट जो है वो साइको सर्जरी है, उसके अपने एथिकल और लीगल पैरामीटर्स हैं। सो अगर किसी पेशेंट को आपने ईसीटी देनी है तो रिटन इन्फॉर्म्ड कंसेंट का होना जरूरी है। ये बात साबित करना जरूरी है कि वो रिटन इन्फॉर्म्ड कंसेंट देने के काबिल था, लाइक बच्चा नहीं था या कोई ऐसा शख्स नहीं था जो डिमेंशिया में था और उसको पता कॉग्निटिवली इंपेयर्ड में नहीं था कि वो कंसेंट नहीं दे सकता था। उस केस में फिर एसडीएम सब्स्टिट्यूट डिसीजन मेकर्स कंसेंट देते हैं। सो स्पेशलाइज्ड साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट की लॉ में जो है शिक है वो आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। देन ट्रीटमेंट ऑफ मेंटली डिसऑर्डर्ड पर्सन, अगेन for assessment reasons the people can be kept for short period of time in a psychiatric facility which could be outpatient or inpatient for assessment purposes for a short period of time which lasts from 24 to 48 hours. बहुत सारे मुल्कों में 48 आवर्स है, पाकिस्तान में 24 घंटे है। 24 घंटे के बाद आपको पेशेंट को डिस्चार्ज करना है या उसको फारिग करना है। उसकी मर्जी के खिलाफ आप उसको नहीं रख सकते जब तक कि लीगली उसकी अप्रूवल ना हो जाए। हम आमतौर पर मरीजों को उनकी मर्जी के खिलाफ ही दाखिल करते हैं इन पेशेंट साइकियाट्री में, जो कि लीगली अलाउड नहीं है। और उसको दवाइयां भी खिलाते हैं, टीके भी लगाते हैं और उसको टोन भी रखते हैं, विच इज अगेन लीगली नॉट अप्रोप्रिएट। फंसने जाने के चांसेस हैं। जहानत रो रही है मुंह छुपाए, जहालत कह कहे बरसा रही है, अदब पर अफसरों का है तसल्लुत, हुकूमत शायरी फरमा रही है। ये कता मैंने इसलिए लिखा कि हमारे मेंटल हेल्थ लेजिस्लेशन में, मेंटल हेल्थ लॉ में और लीगल चीज़ों में बेशुमार मसाइल हैं, और अनफॉर्चुनेटली बिकॉज हम लोगों को उसका पता नहीं होता तो इसलिए हम उसमें गलतियों पे गलतियां करते चले जाते हैं और उसको हम सही तरह परसीव नहीं कर पाते। सो आप लोगों के लिए प्लीज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज जरूरी है कि इन बातों का आपको पता हो, और रिप्रोड्यूस करने के बाद फ्यूचर एस्पेक्ट से भी बहुत जरूरी है कि इन बातों का पता हो। अगर नहीं पता होगा फंस जाएंगे कहीं ना कहीं। अगर आपने नहीं फंसना तो इसकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। फिर हर सूबे पे ये लाजिम है कि वो मेंटल हेल्थ अथॉरिटी तश्कील दे, और उस मेंटल हेल्थ अथॉरिटी में आमतौर पे 8 से 10 लोग शामिल होते हैं। उनमें से एक चेयरमैन होता है, एक सेक्रेटरी होता है, उसमें 2 साइकियाट्रिस्ट का होना जरूरी है, और उसमें 3 या 2 साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस कम से कम 10 साल हो। असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल का शख्स मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का हिस्सा नहीं बन सकता लॉ के हिसाब से। एसोसिएट प्लस माइनस अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, प्रोफेसर लेवल का बंदा, क्योंकि हम कंसिडर ये करते हैं कि प्रोफेसर लेवल के बंदे को 10 साल साइकियाट्रिक प्रैक्टिस करते हुए हो गए, लेकिन अगर किसी का एक्सपीरियंस 10 साल से कम है, चाहे वो असिस्टेंट है, चाहे वो एसोसिएट है, चाहे वो प्रोफेसर हो गया, तो वो मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का हिस्सा नहीं बन सकता। पंजाब में मेंटल हेल्थ अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, सिंध में करती है कि नहीं, आई हैव नो आइडिया। जस्ट चेक आउट विद योर सुपरवाइजर्स एंड यूल बी एबल टू नो। अब मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है, और वो फंक्शंस को डिमार्केट किया गया है कि मेंटल हेल्थ अथॉरिटी ये काम करेगी। मसलन गवर्नमेंट को सजेशंस देगी कि जी ये लॉ किस किस्म का बनाया हुआ है, इसको करेक्ट करें, और उसमें हैं प्रॉब्लम्स बेशुमार। वो नए स्टैंडर्ड गाइडलाइंस बनाएगी, ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज प्रिस्क्राइब करेगी लोगों को बताने के लिए, साइकियाट्रिस्ट को रिकमेंड करेगी एग्जिस्टिंग मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज को इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी चीजें चाहिए, चाहे वो चाइल्ड साइकियाट्री हो, एडल्ट साइकियाट्री हो, जीरियाट्रिक साइकियाट्री हो, लर्निंग डिसेबिलिटी हो, या कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज हो। प्रिस्क्राइब प्रोसीजर्स करेगी, कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाएगी, रेगुलर रिव्यू करेगी, बोर्ड ऑफ विजिटर्स बनाएगी। बोर्ड ऑफ विजिटर्स की आगे मैं बात करता हूं दोबारा। केयर प्रोवाइड करेगी, पेशेंट को रेगुलेट करेगी, चेक करेगी कहीं अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं हो रही। लाइक जैसे किसी नुस्खे के ऊपर अक्सर हम नुस्खे देखते हैं कि उसमें ईस्ट एल्प्राम 5 मिलीग्राम
हेलोपेरिडोल 1 मिलीग्राम, रिस्पेरिडोन 2 मिलीग्राम, एक बेंजोडाइजेपिन, और डायग्नोसिस मेंशन नहीं किया जाता। ऐसी सिचुएशन में अगर मेंटल हेल्थ अथॉरिटी समझती है कि साइकियाट्रिस्ट मैल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है, तो ये उसका काम है करेक्ट करना। ये बहुत सारे सवाल साइकियाट्रिस्ट पूछते हैं जी, पीपीएस को ये काम करना चाहिए, उसको ये काम मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का है। तो साइकियाट्रिस्ट को मिलके मेंटल हेल्थ अथॉरिटी बनानी है, और मेंटल हेल्थ अथॉरिटी गवर्नमेंट की अप्रूवल से बनेगी, और उसके फंक्शंस फिर ये होंगे कि इन चीजों को रोके या उसका तदारक करे। ये लीगली इन्वॉल्व है। फिर बोर्ड ऑफ विजिटर्स, ये लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि अगर किसी जगह पे मैल प्रैक्टिस हो रही, जैसे कि हमारे मुख्तलिफ बड़े बड़े शहरों में नशा छोड़ क्लिनिक बने हुए हैं, जहां पे मरीजों को बंद कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है, और फिर मरीजों को टीके शीके लगा के 3-3 महीने 6-6 महीने रखा जाता है, और जब वो बाहर निकलते हैं वो दोबारा नशा शुरू कर देते हैं। वहां पे अगर कोई साइकियाट्रिस्ट अवेलेबल नहीं है, अगर वहां पे सोशल वर्कर्स, रिहैबिलिटेशन सर्विसेज अवेलेबल नहीं, आइडियली होनी चाहिए, तो इस पे एतराज बोर्ड ऑफ विजिटर्स करते हैं, जो रिकमेंडेशन मेंटल हेल्थ अथॉरिटी को देते हैं, जो लीगली गवर्नमेंट के साथ मिलके उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। ये लॉ में प्रोविजन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कहीं भी होता नहीं है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। अब उसमें बोर्ड ऑफ विजिटर्स में कौन कौन होता है, ये उसकी थोड़ी सी अगेन है कि उसमें एक चेयरपर्सन होगा, एक 2 साइकियाट्रिस्ट होंगे, एक प्रोमिनेंट सिटीजन होगा, 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होंगे, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज का बंदा या उसका नॉमिनी होगा। सो जिन लोगों ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में काम किया हुआ है, उनको आइडिया होगा कि जब भी बोर्ड तश्कील दिया जाता है, 2 साइकियाट्रिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट, एक एमएस, एक हेल्थ अथॉरिटी का सेक्रेटेरिएट का नॉमिनी, और एक डायरेक्टर जनरल हेल्थ की तरफ से नॉमिनी एक्सेप्टेड होता है, उसके बगैर ये काम नहीं होता। अब आते हैं बात कि मरीजों के राइट्स के बारे में, जो मेंटल हेल्थ एक्ट का हिस्सा है। मुख्तलिफ पीरियड्स डिमार्केट किए गए कि कितने दिनों के लिए, किस पर्पस के लिए आप पेशेंट को एडमिट कर सकते हैं। ये एडमिशन लीगल एडमिशन है, उसकी मर्जी के खिलाफ। अगर कोई शख्स, मैं अपने बच्चे को लेके चला जाता हूं अस्पताल गए, इन्हों दाखिल कर रहा हूं, ठीक है, तो उसको दाखिल करने के लिए वो लीगल प्रोसीजर्स क्या हैं। एक, पहली बात तो ये कि या तो 2 साइकियाट्रिस्ट ने उसको देखा हो और ये असेस किया हो कि इसको दाखिले की जरूरत, उसकी मर्जी के खिलाफ, या उसकी फैमिली ने या साइकियाट्रिस्ट ने या मेडिकल ऑफिसर ने देख के मैजिस्ट्रेट से अप्रूवल के लिए लेटर भेजा हो कि इस शख्स को इसकी मर्जी के खिलाफ दाखिले की जरूरत है। अगर ये होगा तो वो दाखिल होगा, अदरवाइज वो इलीगल है। सो आप किसी भी शख्स को आउट पेशेंट डिपार्टमेंट से एडमिट उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं कर सकते। अगर उसकी कंसेंट होगी तो एडमिशन होगा, वो वॉलंटरी एडमिशन है। वॉलंटरी एडमिशंस में कोई मसाइल नहीं है, आप पेशेंट से बातचीत करते हैं, उसे असेस करते हैं, आप उसको दाखिले के कहते हैं, वो वॉलंटरली एडमिट हो जाता है, वो अपनी मर्जी से एडमिट हुआ है, अपनी मर्जी से डिस्चार्ज होके चला जाएगा। लेकिन जहां पे वो कंसेंट नहीं दे रहा या नहीं दे सकता, या वो इस बात का उसको फहम नहीं है कि वो बीमार है, वहां पे जब आपने एडमिशन करना है तो आपको लीगल प्रोसीडिंग्स करनी है। उसमें या तो 2 साइकियाट्रिस्ट को देखें, या मेडिकल ऑफिसर मैजिस्ट्रेट को चिट्ठी लिखे, या उसकी फैमिली मैजिस्ट्रेट से अप्रूवल लेकर आए, फिर दाखिला होगा, वरना नहीं होगा, वरना वो लीगल बार्ड में कानूनी तौर पे वो खिलाफ है। The period of detention for the purpose of assessment shall be up to 28 days from the date of application made under section 10. ये section 10 सिविल लॉ के सेक्शंस में से है, ठीक है। सेक्शन 10, 11, 12 ये सारे सेक्शंस बने हुए हैं जो वहां से सिविल लॉ के तहत लेकर आए गए।
उसमें शिकें हैं कि इस शिक के मुताबिक पेशेंट को अगर ये होगा तो उसको आप मैक्सिमम 28 दिन के लिए रख सकते हैं। दिस इज फॉर असेसमेंट ओनली। उन 28 दिनों में आप उसको दवाई नहीं खिला सकते, टीका नहीं लगा सकते, पकड़ नहीं सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये असेसमेंट है। फिर उसके बाद पीरियड ऑफ डिटेंशन है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट which can be up to 6 months from the date of application made under section 11 and is renewable under provision of said section। अगर आप कहते हैं कि जी मैंने इसकी असेसमेंट की है, इसको मैंने 3 दिन अस्पताल में रखा और इसको ये बीमारी है और अब मैं इसका इलाज कराना चाहता हूं, तो फिर भी उसकी लीगल प्रोसीडिंग्स है और उस सेक्शन 10 और 11 के हिसाब से वो कैसे प्रोसेस किया जाएगा कि उसकी मर्जी के खिलाफ उसको दवाई खिला दी जाए, उसकी लीगल प्रोसीडिंग्स में आपको सेक्शन 10 और 11 के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते तो आप लीगली कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, पकड़े जाने के चांसेस हैं। The period of detention for the purpose of urgent admission shall be up to 72 hours from the time of application made under section 12। सेक्शन 12 के तहत किसी शख्स को भी आप पकड़ के दाखिल कर सकते हैं। ये अर्जेंट एडमिशन होगा 72 घंटे, 3 दिन 4 दिन, और वो टाइम पीरियड 72 घंटे का अगेन फॉर असेसमेंट पर्पसेस है, प्रोटेक्शन और सेफ्टी के लिए। अर्जेंट एडमिशन, इससे ज्यादा नहीं आप रख सकते। और उसके बाद अगर पेशेंट कहता है मैं चला हूं तो दरवाजे खुले होंगे, वो जा सकता है। और अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो आप कानूनी तौर पे कानून तोड़ रहे हैं। द पीरियड ऑफ डिटेंशन इन केस ऑफ अ पेशेंट फॉर द पर्पस ऑफ इमरजेंसी होल्डिंग ऑलरेडी इन हॉस्पिटल shall be up to 24 hours from the application under section 13। अब ये 10, 11, 12, 13 सेक्शंस हैं। ये 4 सेक्शंस के तहत पेशेंट को आप रख सकते हैं। इसमें से 3 सेक्शन ये कहते हैं कि उसकी सेफ्टी और असेसमेंट के लिए, और एक सेक्शन ये कहता है जो सेक्शन 12 है कि मैं इसको दाखिल कर सकता हूं इलाज मुआवजे के लिए फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस। वो 2 हफ्ते भी हो सकते हैं, 6 हफ्ते भी हो सकते हैं, 6 महीने भी हो सकते हैं, और 6 महीने के बाद उसको एक दफा रिन्यू करके आप दोबारा कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इनमें से कोई भी चीज पाकिस्तान में प्रैक्टिस नहीं होती, विच इज अनफॉर्चुनेट। सो उस तरफ हम नहीं जा रहे। 14, इमरजेंसी पावर्स। अगर किसी शख्स को मैं देखता हूं कि जी इस शख्स को खतरा है, ये अपने आप को नुकसान पहुंचा लेगा या किसी और को नुकसान पहुंचा देगा, तो उसमें सेक्शन 14 के तहत उसका बनता है। Where in case of an emergency, a medical practitioner is unable to obtain informed consent in writing, he may administer treatment notwithstanding the provision of section 51 that in his professional opinion is necessary for। So, अगर मैं मरीज को देखता हूं वो इमरजेंसी में आया और मैंने कहा ये तो तबाही फिर जाएगी, इसने तो अपने आप को कत्ल कर लेना या किसी और को कर देना है, या किसी की जान को या उसकी जान को खतरा है, जो मैं लीगली कोट करके लिखूंगा कि ये पेशेंट अपने लिए या किसी और के लिए रिस्क साबित हो सकता है, रिस्की साबित हो सकता है, सो ही शुड बी एडमिटेड और ट्रीटेड, तो मैं उसको एक दफा टीका उस सूरत में लगा सकता हूं या दवाई उस सूरत में दे सकता हूं जब मुझे ये यकीन हो कि मैं उसकी जिंदगी बचा रहा हूं या किसी और की जिंदगी बचा रहा हूं या सीरियस डिटीरियोरेशन को अवॉइड कर रहा हूं या एलिविएटिंग सीरियस सफरिंग को और पेशेंट को बचाने की कोशिश कर रहा हूं या पेशेंट को वायलेंट और एग्रेशन से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं। और वो टीका शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। सो अगर मैं किसी को डेपो लगा दूं ऐसी सूरत में तो वो इलीगल है। हाँ, उसको अगर मैं प्रोमेथोजीन, डायजिपैम, हेलोपेरिडोल लगाता हूं इस सूरत में कि जब मुझे नजर आ रहा है क्लियरली, तो सेक्शन 14 के तहत मैं इमरजेंसी पावर्स यूज करते हुए ये काम कर सकता हूं। हिजर की तन्हाई कुछ यूं गुजार लेते हैं, मुख्तलिफ जावियों से सेल्फी उतार लेते हैं, आप सबके लिए। चैप्टर 5, अब ये
खत्म हो गया काम कि जी मरीज को आपने कैसे दाखिल करना है और कैसे उसका इलाज करना है। अब कुछ और चीजें सिविल लॉ में होती हैं, जैसे किसी की प्रॉपर्टी का झगड़ा है, किसी के पैसों का झगड़ा है, वो कैसे डिसाइड होंगी। उसमें सेक्शन 29 जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, रेगुलेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट ऑफ प्रोटेक्शन है, इंक्वायरी बाय सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑन कमीशन इशूड बाय द कोर्ट ऑफ प्रोटेक्शन एंड प्रोसीडिंग्स देयर ऑन, appointment of a guardian, management of property of mentally disordered person, responsibility of manager। ये सारी चीजें हमने नहीं फैसला करना, हमने इन चीजों में अपनी ओपिनियन देना है और फैसला जज ने करना है। ठीक है, सो हम जजमेंट नहीं दे सकते कि जी ये शख्स इस काबिल नहीं कि अपनी प्रॉपर्टी को देख सके। हम ओपिनियन दे सकते हैं, फैसला जज ने करना। लाइक एग्जांपल मैं देता हूं कि मुझे एक दफा पेशेंट, एक बच्ची दाखिल हुई है अस्पताल में, वार्ड में, और मुझे हाईकोर्ट के जज ने बुलाया और उन्होंने ये दिया कि जी इसकी आप ओपिनियन दें कि ये बच्ची का बाप की डेथ हो गई है, चाचा चाची और बाकी घर वाले चाहते हैं कि ये बच्ची को साथ ले जाएं क्योंकि उनके ख्याल में माँ इस बच्ची की प्रॉपर केयर नहीं कर सकती। आपके ख्याल में क्या होगा? ओपिनियन चाहिए। अब मैं जजमेंट नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ओपिनियन दे रहा हूं। सो मैं कोर्ट में गया, मैंने जज साहब को अपनी ओपिनियन सुनाई, उन्होंने रिस्पेक्टफुली, ऑफ कोर्स they are judges who are very respectful. Of course sometimes people do have bad experiences, but unfortunately or fortunately most of the people, they are very respectful. So he asked me कि प्रोफेसर आप अपनी ओपिनियन सुना दें पढ़ के कोर्ट में, और there were about 100 people inside that room, hundreds and maybe more than that, and I just read my opinion that scientifically, ethically, morally, practically reference दे के एक कोटिंग के हिसाब से कि बच्ची के लिए बेस्ट जगह क्या है, कहाँ भेजना चाहिए माँ के पास, वो हमने ओपिनियन दी। एंड देन जज सेड यू कैन गो नाउ, राइट, दैट्स इट। सो मेरा काम सिर्फ ओपिनियन देना है, जजमेंट देना नहीं है, फैसला कोर्ट ने करना है। ये चीजें उससे चैप्टर 5 उसी चीज से रिलेटेड हैं। पैसों का हिसाब किताब कौन रखेगा, उसकी जायदाद का हिसाब किताब कौन रखेगा, ये मैंने सिर्फ ओपिनियन देनी साइकियाट्री के तौर पे, साइकियाट्रिस्ट के तौर पे, फैसले नहीं देने। सो जब लोग भी आपने ओपिनियंस लिखनी है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। देयर शुड नॉट बी अ सिंगल वर्ड which will make you feel that this is a direction, not an opinion. So opinion has to be that I have assessed this person in detail on considering the history, mental state examination, and other relevant investigations conducted in this regard. This patient is suffering from major depressive disorder, and this person should be given a leave for about 6 weeks time or 3 months time till the time the outcome and prognosis will be appropriately handled to make sure that the patient go back to normalcy, blah blah, इस किस्म के अल्फाज। डायरेक्शन नहीं होगी, ओपिनियन होगी। So there is a difference. You have to be careful because every day you will have these people coming to your outpatient clinics, inpatient, everywhere, and legally you have to remember this, that you are just an opinion person who can give opinion, not the decisions. Okay, the decisions lies with somebody else. Same goes for cost of maintenance of mentally disordered person admitted in psychiatric facility. This maintenance out of pay, pension, government, उस तरह से पे किया जाता है। Protection of human rights of mentally disordered person, cases of attempted suicide. शुक्र है कि ये चीज अब बेहतर हो गई। पहले जब सुसाइड अटेम्प्ट पेशेंट करते थे और इमरजेंसी में जाते थे, जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे लॉन्ग टाइम बैक, तो उस वक्त वो कहते थे जी ना लिखें कि इसने सुसाइड किया, क्योंकि उसी वक्त पुलिस आ जाती थी और पुलिस मरीज पे पर्चा काट देती थी कि इसने सुसाइड किए। थैंक गॉड कि वो चीज खत्म हो गई है। अब उसको कंसिडर किया जाता है कि यस, दिस पर्सन इज हैविंग साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स and this should be dealt appropriately by a psychiatrist. Of course, the protection, the security, and other issues can be taken care by the other associated agencies involved in the care. Confidentiality, not under any circumstances
I am capable of disclosing any information related to my patient. So मैंने आपको अभी जो कोर्ट की एग्जांपल कि मुझे कोर्ट में बुलाया गया और मुझसे ये ओपिनियन मांगी गई, नाम कहीं मैं नहीं ले सकता, उसकी डिस्क्रिप्शन ऐसे नहीं दे सकता कि लोगों को पता चल जाए कि मैं किस मरीज की बात कर रहा हूं. So confidentiality is our responsibility legally and we are liable for it. Informed consent की बात मैंने कर दी. Any questions so far? आई होप कि मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा. अगर समझ ना आ रही हो प्लीज खुदारा रोक देना. आई वुड लव टू इंटरेक्ट एंड रिस्पॉन्ड. अगर समझ ना आए कहीं सर नहीं, आप कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे, आप बहुत अच्छी तरह इलैबोरेट कर रहे हैं. सो अगर समझ ना आए कहीं पे भी रोक देना. थोड़ा सा रह गया एक question about section 13 in section 3 emergency holding. What is the difference between emergency holding and admission for assessment? Because even in that scenario we are admitting the patient against his will, so I was just a little confused. Emergency admission for 24 to 48 hours time is in case when you feel that the patient is risky for himself or for the society. You can give some kind of a treatment which can last to control 6 to 8 hours or 24 hours, which can control the current episode shortly if things can settle down. Like emergency admission की मैं simple सी मिसाल ये दूं, किसी शख्स ने शराब पी, बहुत ज्यादा इंटॉक्सिकेटेड हो गया, अस्पताल आया, तो उसको उसकी सेफ्टी के लिए 24 घंटे के लिए अस्पताल में रख लिया गया. जब उसका नशा उतरा और वो सेंसेस में आया तो वो घर चला गया. ये इमरजेंसी होल्डिंग है. असेसमेंट पर्पसेस के लिए जब मैं पेशेंट को एडमिट कर रहा हूँ, साइकोटिक है, स्किज़ोफ्रेनिया है, मेनिया है, बाइपोलर है, ऐसे पेशेंट्स को आमतौर पे असेसमेंट के लिए एडमिशन किया जाता है. असेसमेंट 24 घंटे में आमतौर पे साइकियाट्री में पूरी नहीं होती. तो उसमें दिन लग सकते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन. उसके घर वालों से बात करनी, दफ्तर वालों से बात करनी, मेंटल स्टेट करना, इन्वेस्टिगेशंस करानी है, कुछ वक्त लग सकता है. वो असेसमेंट के लिए एडमिशन है. ये मेजर फर्क है दोनों में. ओके, थैंक यू. ओके, ऑफेंसेस एंड इंडेमनिटी. सर may I add please? Yes, sure. अस्सलाम वालेकुम सर. सर ये 9 to 13 सेक्शंस जो है, जितने भी पास क्वेश्चंस जो एससीक्यू पेपर आते थे उसमें सेक्शन 9 to 14 से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और इवन आई नोटिस के हमने जब एग्जाम डिस्कस किया तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये 9 to 14 ही था कि जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं. वो डॉक्टर साहब आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया. मैंने इसीलिए शुरू में बात की थी कि you have to understand the difference between forensic psychiatry and mental health law. Mental health law is related to patient safety, security, ethical and other social boundaries. Forensic psychiatry related to criminality and law. ये 4 सेक्शंस, अभी जितना भी मैंने आपको सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन दी है, ये 4 सेक्शन उस लॉ में उस चीज से रिलेटेड है जिसमें डायरेक्टली आप इन्वॉल्व हैं. बाकी चीजों में आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, बट आपकी ओपिनियन मैटर करती है. सो अगर आप बाकी चीजों को क्लैरिफाई नहीं करते, सवाल इस पर भी आ सकता है कि पेनल्टी फॉर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट. अगर किसी शख्स ने जानबूझकर ये साबित करने की कोशिश की कि वो बीमार था जबकि वो मेंटली हेल्दी था, तो उसकी सजा क्या होगी. अगेन, सजा और जजा का ताल्लुक साइकियाट्रिस्ट से नहीं है, वो कोर्ट या जजमेंट अथॉरिटी करती है. लेकिन मैं ओपिनियन देता हूं कि जी इसने झूठ बोला, मैं ओपिनियन देता हूं कि इसने फ्रॉड किया, मैं ओपिनियन देता हूं कि ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ये मैनिपुलेटर है, ये कुछ. सो मेरी ओपिनियन मैटर करती है, वो मैं दूंगा. जजमेंट मैं नहीं दे सकता. इंडेमनिटी भी में भी यही है कि अगर कोई शख्स मेंटली इल था और उससे कोई खता हुई तो क्या उसको उसका जुर्माना देना पड़ेगा. जुर्माने की बात हो रही. सो इंडेमनिटी में यूजुअली अगर मैं ये साबित कर दूं कि कोई शख्स मेंटली अनवेल था और उसने उस मेंटल एलिमेंट के दौरान
किसी से पैसे लेके खा गया, लाइक मैनिक पेशेंट ने, तो वो इंडेमनिटी के जुमरे में नहीं आएगा, सो उसको पैसे नहीं देने, उसको कोर्ट माफ कर सकता है मेरी ओपिनियन के बेस पे। सो आपको हर चीज में ये अंडरस्टैंड करना है कि हम ये लफ्ज क्यों यूज कर रहे हैं मेंटल हेल्थ लॉ के तहत। सेम चैप्टर 9 इंस्पेक्शन ऑफ मेंटली डिसऑर्डर्ड प्रिजनर्स, यहां पे फोरेंसिक साइकियाट्रिस्ट आता है। ये जुमरे सारे वो हैं। अब यहाँ पे अगर आप मेंटल हेल्थ लॉ की किताब पढ़ें तो उसमें फोरेंसिक साइकियाट्री के जो क्या सर्विसेज हैं, क्या होनी चाहिए, क्या उनका तरीकेकार है, वो जो कोर्स अभी तारिक हसन साहब और अली बुरहान मुस्तफ़ा साहब मिलके करा रहे हैं, आई होप कि अगर आप लोग वो अटेंड करेंगे तो आपको इन चीज़ों से रिलेट होगा। लेकिन जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये सारी सिविल लॉ से रिलेटेड है। Specialized psychiatric treatments, provision of public and private sector psychiatric facilities। अब पाकिस्तान में अगेन बहुत चीज़ें और भी ऐसी होती हैं जो अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लमेटिक होती हैं। ऑफ द रिकॉर्ड अभी बात करता हूँ। मैं क्यों करूँ दुआ कि तुम्हें मेरी उम्र लग जाए साहब, क्या पता ये मेरा आखिरी दिन हो और तुसी भी सारे नाल टंगे रहो अनफॉर्चुनेटली। सो ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातें कर लूँ।